वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग एक मॉक इंटरव्यू लेंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो अभी डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फॉर डेटा साइंस जॉब रोल, फॉर डेटा इंजीनियरिंग, फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो ऐसे हम लोग एक मॉक इंटरव्यू लेंगे, और जो ऑलरेडी अभी वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। इफ यू वांट टू स्काई रॉकेट योर करियर, और यू वांट टू चेंज योर जॉब रोल्स एंड वांट टू कम इनटू दिस फील्ड ऑफ डेटा साइंस। So my name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni, and I am also done research in Harvard University. And right now I am a senior data scientist in a reputed MNC. And like I have total 4+ years of working experience and 9+ years of experience in this field of data science, AI, ML, deep learning. So welcome, Yasir Beg. So he is a great fellow, and he is already studying data science for quite a long time, and he is interested for this mock interview. So welcome you to my channel, and I would like Thank you, to, sir. yeah, yeah, it would be great if you give a short introduction about yourself. Okay. First of all, very thankful to you that you are giving to me a very good opportunity to talk myself. My name is Yasir Beg. I belong to Bareilly, Uttar Pradesh, and currently I am doing MTech from Jamia Millia Islamic University in the field of data science. And before that, I have completed my master's in physics. So I am very curious to get a job in the field of data science. Okay, great. So are you currently you are looking for a job, right? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग एक मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मॉक इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, जो मैं अभी पूछ लिया हूँ, एंड याशिद अभी उसका रिस्पॉन्स किया है। सो कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन पाइथन लैंग्वेज और एनी काइंड ऑफ Uh, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Python language in the field of data science, which is required, I am comfortable. ओके फाइन। तो आप कितने रेट करेंगे खुद को, मतलब आउट ऑफ से 5? Uh, uh, five, 5 to 6. ओके सो आउट ऑफ 10 यू आर मेंशनिंग 5 to 6? Yeah, out of 10. Out of 10. ओके ओके ओके, गुड टू नो दैट। अच्छा, ठीक है। सो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में क्या क्या प्रोजेक्ट पहले किया है? Machine learning में actually I have done a project based on the recommendation system. I have made a project on the movies data set. Uh, in which project the you are giving the name of the one movie and the model will return you the five similar movies, and in the for the machine learning algorithm I have made one project, another project that is spam ham classifier. In this project some concept of the NLP used and some concept of machine learning used. ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, दो। अच्छा ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट ही अच्छा है। सो ये जो Yes. मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है, तो इसमें कौन से Yes. एल्गोरिथम यूज हुआ है पीछे? एक्चुअली सर इसमें मैंने यूज किया था कोसाइन सिमिलरिटी. ओके ओके, सो इट इज Cosine similarity is a technique which is yes sir, यस uh, यस। which is calculating the smallest distance between the two vectors, and the distance is minimum between the two vectors, then we can say the movie is similar to the previous movie. ओके ठीक है। और क्या, और कौन से एल्गोरिथम के बारे में मतलब तुम सोच सकते हो जो सिमिलर है टू कोसेस सिमिलरिटी? मतलब मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स होता है। uh, Actually sir, cosine similarity, नहीं तो I एक, नहीं तो मतलब actually I ऐसा। इस टाइम आइडिया नहीं है सर. ओके, मैं एक हिंट देता हूँ। जैसे हम लोग कोई चीज को, Okay. मतलब कोई पॉइंट है उसकी नियर बाई जो पॉइंट्स है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं? Sorry sir. मतलब हम लोग के पास सपोज दो डिफाइंड क्लासेस है, दो डिफाइंड क्लासेस का पॉइंट्स है मेरे पास, Okay. और मैं देखना चाहता हूँ Okay. मेरा जो टेस्ट डेटा है, जो एक पॉइंट है, वो कौन से
क्लास में बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम लोग कभी कभी करते हैं ना, जो नियरेस्ट कौन कौन सा पॉइंट है ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये कौन सा ओके ओके एल्गोरिथम है? ओके सर, दिस बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ना? राइट, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो कौन सा या एल्गोरिथम यहाँ पे तो हम लोग use करते हाँ सर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं इस केस में, और डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हैं, एंड एसवीएम यूज कर सकते हैं, और नाइव बायस भी यूज कर सकते हैं सर। हैं? हाँ, नाइव गुड। बायस में सर मल्टीनोमियल नाइव बेस है, और बाइनोमियल नाइव बेस है, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, करेक्ट आंसर। बट नेव बायस और ये सब में हम लोग जनरली प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। बट यस जैसे सर, कोसाइन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। हाँ, जैसे कोसाइन सिमिलैरिटी हो गया, तो ऐसे अगर हम लोग डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग निकालना चाहते हैं, तो कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है? वी कैन यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन ओके, लॉजिस्टिक because we रिग्रेशन। are calculating the distance between the two vectors. ओके, ओके, हैव यू हर्ड अबाउट केएनएन? Yes, canon, I had. यस, केएनएन K यूज nearest होता neighbors, yes sir. है, Yes, केएन, हो सकता है, हो सकता है। मतलब मूवी रिकमेंडेशन के लिए हम लोग केएनएन यूज कर सकते हैं। Can, yes sir, of course. ठीक है। जो और एक टेक्निक है, के मीन्स। सो के मीन्स और केएनएन के बीच में क्या डिफरेंसेस है? K nearest neighbors में sir, we are calculating the nearest vector, which is the minimum, having the minimum distance between two vectors. और के मीन्स में? Uh, K means में सर आइडिया नहीं है अभी क्या। अच्छा, अच्छा, ओके। आपको पता है क्या, वो सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? यस सर। हाँ, ओके। हाँ। तो सुपरवाइज लर्निंग में सर क्या होता है कि जो डेटा सेट होता है वो लेबल डेटा सेट होता है। तो इनपुट डेटा सेट, इनपुट पॉइंट के साथ हमारे पास आउटपुट हमेशा रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट पॉइंट्स, द आउटपुट इज देयर। हम्म, ठीक है। एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है सर, जो डेटा होता है हमारे पास वो अनलेबल्ड होता है। तो उसमें हमारे पास आउटपुट नहीं होता, टारगेट नहीं होता। तो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो सीखता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट पॉइंट्स इटसेल्फ। ठीक है, राइट, राइट। तो इसका कोई एग्जांपल ऑफ बोथ द टेक्निक्स? एग्जाम्पल में सर इसका जो है, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया आपका, तो दिस इज द सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। एंड लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, ओके, और स्पैम हैम क्लासीफायर हो गया, ये भी सुपरवाइज में ही आता है। और अनसुपरवाइज में सर क्लस्टरिंग आ जाता है हमारा, क्लस्टरिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट पॉइंट्स वी आर मेकिंग द पैटर्न्स इन राइट, द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो क्लस्टरिंग में हम लोग पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न द जो मॉडल होता है वो सीखता है उन पैटर्न से। राइट, राइट, राइट। तो मैं जो के मीन्स के बारे में बताया, के मीन्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक अनसुपरवाइज लर्निंग। यस एंड यस 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 यस, ओके। सो एंड आपका जो सेकंड प्रोजेक्ट था, विच इज स्पैम हैम क्लासिफायर, सो स्पैम हैम क्लासिफायर में यस। आपने क्या किया था? सबसे पहले तो सर डेटा कलेक्शन किया मैंने, केगल से डेटा एक उठाया, उसके ऊपर सब कुछ मैंने क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग किया। तो उसमें सबसे पहले तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में जब भी बेसिकली इट इज द बेस्ट केस ऑन दी एनएलपी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने क्या किया इसमें, डेटा प्रोसेसिंग किया सबसे पहले। इसमें डेटा को क्लीन किया। सपोज टेक्स्ट के अंदर कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे एट द रेट सपोज उसमें आ गया, हैश आ गया, स्टार्स वगैरह आ गए, तो इनको सबको रिमूव करना होता है पहले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम तो उसको क्लीन किया डेटा को। और उसके अंदर सब क्लीनिंग में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले नल वैल्यूज भी देखते हैं डेटा के अंदर कि कुछ नल वैल्यूज तो नहीं है। तो अगर नल वैल्यूज हैं तो उसको रिमूव किया मैंने। और we can fill them by using some techniques। हम्म, एंड उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या होगा, अ, हम्म, हम्म, ठीक है। उसके बाद फिर सर हमने उसको लोअरिंग डाउन किया, हम्म, लोअर किया। ठीक है, मतलब जो भी कैपिटल लेटर्स थे उनको सबको इस लोअर लेटर्स में कन्वर्ट किया। फिर हम्म, उसके बाद हम लोग करते हैं रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स। जितने हम्म। भी स्टॉप वर्ड्स हैं हमारे कॉर्पस के अंदर उनको रिमूव करते हैं हम लोग।
तो हम्म स्टॉप वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनका मतलब सेंटेंस की मीनिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, राइट। हम्म बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू मेकिंग द सेंटेंस, हम्म बट नॉट कंट्रीब्यूटिंग द इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो ओके। पहले हमने क्या किया, उसमें स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है टोकनाइजेशन। तो एनएलटीके यूज होती है इसमें। तो एनएलटीके की एक एनएलटीके लाइब्रेरी में एक मेथड होता है टोकनाइजेशन। तो उससे हम लोगों ने फिर वर्ड्स को टोकनाइज किया। ओके। ओके, फिर उसके बाद टोकनाइजेशन के बाद फिर हम लोगों को करना होता है स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब सर, जैसे कोई भी वर्ड्स है तो उसको हम वी आर कन्वर्टिंग इनटू द रूट वर्ड्स ऑफ दैट वर्ड्स। हम्म तो ठीक। इसमें एक और टेक्निक होती है लेमेटाइजेशन। तो स्टेमिंग में क्या होता है, स्टेमिंग में वो जब रूट वर्ड होता है वो इट मे बी मीनिंगफुल और मे बी नॉट। बट स्टेम स्टेम लेमेटाइजेशन में क्या होता है, जो रूट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एक सर्टेन मीनिंग होती है। तो लेमेटाइजेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर और स्टेमिंग भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब ये सब चीज हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग को करना होता है जो भी टेक्स्ट आता है हमारा उसको नंबर्स में हमने कन्वर्ट करना रहता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बैग ऑफ वर्ड्स हो गया आपका, टीएफ आईडीएफ हो गया, और वर्ड एम्बेडिंग्स हो गया। ये सब दिस और ऑल द टेक्निक्स टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द नंबर्स। ठीक है। ठीक है देन फिर। उसके बाद फिर मॉडल बिल्डिंग वाला पार्ट आता है। मॉडल बिल्डिंग हम करते हैं, जो भी हमारा जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा सेट का, उसको हम फीड करते हैं अपने मॉडल के ऊपर। तो मॉडल कुछ भी हो सकता है, सुपर मशीन लर्निंग मॉडल हो सकता है, डीप लर्निंग मॉडल हो सकता है। तो उसमें देते हैं, फिर उसके बाद हम उसका मॉडल के बाद प्रेडिक्शन करते हैं। तो जो भी प्रिडिक्शन होता है उसके बेसिस पे हम इवेल्यूएशन करते हैं मॉडल का, कि मतलब कितना परफॉर्मेंस दे रहा है मॉडल, उसकी एक्यूरेसी क्या है और रिकॉल क्या है, प्रिसीजन क्या है। तो अगर मान लो वहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आता है, फिर उसके बाद मॉडल को हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट होता है और फिर मॉनिटरिंग होती है मॉडल की। ठीक है। ठीक है। सो ये जो यस सर। स्टीमिंग और लिमिटेशन जो प्रोसेस तुमने एक्सप्लेन किया है, तो इसके बीच बीच में यस एक सर। मेन डिफरेंस यू हैव मेंशन, तो इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है? इसके बीच में डिफरेंस सर ये हो सकता है, जैसे सपोज हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। जैसे सपोज वी आर डूइंग सेंटिमेंट एनालिसिस, तो हम्म इन दैट प्रोजेक्ट वी कैन यूज स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन। बिकॉज इन द सेंटिमेंट एनालिसिस जो भी हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स है उनके बेसिस पे हम लोग प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हम्म लेकिन अगर सपोज कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में लेमेटाइजेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके इसमें स्टीमिंग हम लोग यूज नहीं करेंगे। यस सर। ओके फाइन। और कौन सा प्रोसेस थोड़ा फास्टर होता है? स्टेमिंग ऑब्वियसली फास्टर होता है इन कंपेरिजन टू लेमेटाइजेशन। अच्छा। ठीक है। और कौन सा मॉडल यूज किया, मतलब जब मॉडल बिल्डिंग कर रहे हैं? मॉडल बिल्डिंग में सर, जैसे सपोज ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इस पे हम क्लासिफायर, इट इज द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो वी कैन परफॉर्म एनी मॉडल। ओके। Like ओके। I have made various model like logistic regression, random forest, and हम्म जिसमें भी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आती है वो मॉडल हम रख लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है। तो कौन सा मॉडल बेटर है, इसको कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं? In the classification problem, I feel that the random forest is doing very well. वो तो डिपेंड करेगा कौन सा डेटा सेट है, बट मतलब कौन सा मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं, जैसे मेंशन किया एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी के अलावा और क्या क्या अच्छा। मैट्रिक्स होता है? ओके ओके। ओके हाँ। ओके सर, उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं और F1 स्कोर देखते हैं और प्रेसिजन देखते हैं, रिकॉल देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है। तो F1 स्कोर कब यूज होता है? F1 स्कोर, सर F1 स्कोर तो पूरी रिपोर्ट देता है ना, वो एक्यूरेसी की और प्रेसिजन की और जो भी रिकॉल है उसकी सबकी सबकी रिपोर्ट दे देता है वो। तो हम्म ये हम लोग डिपेंड करता है डेटा सेट के ऊपर। अगर सपोज डेटा इम्बैलेंस है तो वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, वहाँ पर प्रेसिजन एंड रिकॉल ज़्यादा मैटर करेगा। तो हम्म वहाँ पर अगर इम्बैलेंस डेटा सेट है तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि प्रेसिजन अच्छा हो और रिकॉल अच्छा हो। यार F1 भी अच्छा अगर रहेगा तो बेटर है, यस मतलब सर। अगर इम्बैलेंस डेटा हो यस तो सर। F1 को चेक करेंगे।
Okay, fine. Do you have any question for me? सर यही क्वेश्चन है अभी तो, जो जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए सबको, मुझे भी थोड़े बेनिफिट बेनिफिट हो और जो हम लोगों को देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो। अच्छा, तो ठीक है। तो डेटा साइंस, एआई, एमएल और नहीं तो डेटा इंजीनियरिंग, ये सब इंटरव्यू के लिए सपोज इफ यू आर गोइंग, तो सबसे पहले काम करना, जो जेडी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ओके क्योंकि उसमें उसके अंदर ही रहता है क्या वो मांग रहा है। कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो सभी क्वेश्चंस पूछेगा जो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है और उसका नॉलेज है या नहीं, ये देखना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब कौन से जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जेडी अच्छे से पढ़ना। अगर वो जॉब रोल्स थोड़ा डेटा एनालिटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसमें ऐसे बोल रहा है, जो डेटा से जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, उससे कुछ इन्फरेंस निकालेंगे, तो इसी केस में डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटली, ये सब के ऊपर अच्छे से, नहीं तो पावर बीआई, ये सब के ऊपर अच्छे से ब्रश अप करके जाना। क्योंकि वो क्या बता रहा है, अगर कोई डेटा है तो उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, तो वो लोगों को ऐसे बंदा चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग चाहिए जो उसके ऊपर काम कर पाएगा। इसलिए पावर बीआई है तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, इसके ऊपर अच्छे से देख के जाना। अगर वो जॉब जेडी जो है वो यस डेटा सर। साइंस के ऊपर है, मतलब एआई एमएल के ऊपर थोड़ा ज्यादा है, तो यही एमएल के ऊपर ज्यादा है, मतलब उसमें क्लासीफायर, कौन सा क्लासीफायर यूज करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट बेटर है और डिसीजन ट्री बेटर है, कौन से केस में कौन सा बेटर है। ये ओवरफिटिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये ओवरफिटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं एल वन, तो एल वन के अलावा और भी रेगुलेशन टेक्निक होता है, जैसे एल टू। तो एल वन और एल टू के बीच में क्या यस डिफरेंस सर। होता है, तो ये सारे डिटेल्स जैसे में L2 है सर, मेरे ख्याल से हम्म। L2 सर उसके लिए होता है ना, अंडर फिटिंग के लिए मेरे ख्याल से। नहीं, एल टू ओवरफिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एल टू इज अच्छा अनदर अच्छा। काइंड ऑफ ओके। रेगुलेशन। हाँ, तो ऐसे, मतलब जब एआई एमएल रिलेटेड अगर जेडी हो, तो उसमें क्लासिक कौन कौन सा क्लासिफायर यूज कर सकते हैं, क्या क्या क्लासिफायर है, उसका थ्योरी पढ़ लेना, उसका क्या एप्लीकेशन है, कौन सा एल्गोरिथम का क्या शॉर्टकमिंग है, ये सारी डिटेल्स चीज में पढ़ लेना। और अगर ये जो जेडी है, अगर वो थोड़ा एनएलपी बेस्ड हो, एनएलपी बेस्ड हो मतलब उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर अगर प्रोजेक्ट मांग रहा है, उसके ऊपर बंदे को मांग रहा है, तो ऐसे इसी टाइम में थोड़ा डेटा कैसे प्रोसेस करते हैं, डेटा को कैसे क्लीन करते हैं, फिर कैसे डिफरेंट टेक्निक को यूज करते हैं, आर एन एन एल एस टी एम हो गया, बायोडिरेक्शनल एल एस टी एम, इसका थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक तो थोड़ा कोडिंग करके जाना, तो ये हेल्पफुल होगा। यस सर। तो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा, जेडी को अच्छे से पढ़ना, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या वो मांग रहा है, उसके ऊपर ही डिवॉल्व करेगा क्वेश्चंस। और ऑब्वियसली बेसिक्स हमेशा यस ये सर। स्ट्रांग रखना, थ्योरी हमेशा स्ट्रांग रखना, और हमेशा कोडिंग प्रैक्टिस करते रहना, ताकि जो चीज थियोरिटिकली समझ रहे हैं वो चीज प्रैक्टिकली समझना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कंपनी में जाके वो चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा। Yes, so all the best to यस you. सर। Prepare well, and like I hope you will crack थैंक the यू। interview, and I hope like this video will be helpful for all the audience. And like kindly subscribe to this channel and share this video with all of your friends, and जो डेटा साइंस एंथुसियास्ट है, जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो अभी डेटा साइंस में काम कर रहे हैं तो दूसरा आईटी फील्ड में काम कर रहा है और डेटा साइंस में आना चाहता है, तो उन सब के लिए ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू यासिर यस सर। फॉर दिस मॉक यस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच सर। या, ठीक है।